welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 7 of English, and the name of the chapter is The Adventure of the Blue Diamond. So chapter का नाम है The Adventure of the Blue Diamond. जल्दी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर बताया क्या है. Right? So let's begin. This mystery story tells us one of the adventures of the famous detective Sherlock Holmes. It is narrated by the closest friend and admirer Watson, who is a doctor by profession. So this is basically a story of adventures of the famous detective जिसका नाम है Sherlock Holmes, और ये story narrate की गई है उनके close friend and admirer से जिसका नाम था Watson, जो कि profession से एक doctor थे. Right? I called upon my friend Sherlock Holmes 2 days after Christmas and found him sitting on the sofa. कि मैंने अपने friend Sherlock Holmes को 2 दिन बाद Christmas के बुलाया था और मैंने उन्हें सोफे पर बैठे हुए पाया. He was looking at very shabby hat through his magnifying glass. कि वो एक hat को, गंदी सी hat को बहुत ध्यान से अपने magnifying glass के थ्रू देख रहे थे. Right? I am glad you have come in, he said. I have something to discuss with you. You know Peterson, the doorman? अब he said to his friend कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है. क्या तुम पीटरसन को जानते हो जो डोरमैन था? Oh, I said, does this hat belong to him? अब आफ्टर दिस शर्लॉक ने बोला कि अच्छा, तो क्या ये हैट उसी की है? तो क्या ये हैट उसी डोरमैन को बिलोंग करती है? No, it arrived on Christmas morning along with a good fat goose. The facts are these: at about 4 a.m. on Christmas morning, Peterson was coming home from a party when in front of him he saw a tall man walking along. अब उसने बताया, नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर क्रिसमस के सुबह को आया था along with a good fat goose, कि वो अपने साथ एक fat goose भी लेकर आया था. और मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो 4 बजे सुबह को यहाँ पर आया था और पीटरसन वॉज कमिंग होम फ्रॉम द पार्टी, कि वो घर आ रहा था एक पार्टी से. When in front of him he saw a tall man walking along. जब उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा सा आदमी भी चल रहा है. He was carrying a white goose. As he reached the corner of the street, a little group of toughs attacked him. अब वो अपने साथ एक वाइट कलर का गूज लेकर आ रहा था और जैसे ही वो स्ट्रीट के कॉर्नर तक पहुंचा तो एक ग्रुप ऑफ टक्स ने उसके ऊपर अटैक किया. द मैन रेज्ड द स्टिक टू प्रोटेक्ट हिम एंड बाय मिस्टेक ब्रोक अ शॉप विंडो. कि उस आदमी ने उस स्टिक से हेल्प करने की उसे बचाने की कोशिश की, पर गलती से उससे एक शॉप की जो विंडो थी वो टूट गई. पीटरसन रश्ड फॉरवर्ड टू हेल्प हिम. But he was wearing his doorman's uniform, and the man, alarmed at seeing someone in uniform when he had just broken a window, disappeared. अब पीटरसन जो था वो अपनी डोरमैन की यूनिफॉर्म में था और जैसे ही वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर गया तो वो उसे देखकर वहाँ से भाग गया. When he had just broken a window, कि जब उसने खाली एक विंडो तोड़ी थी वो तभी गायब वहाँ से हो गया. So did the toughs. Peterson picked up the hat and the goose. अब जैसे ही वो आदमी भाग गया वो वहाँ पर अपना हैट और गूस जो है उसको छोड़ गया, तो वो पीटरसन ने उठाई. A small card tied to the bird says for Mrs. Henry Baker, and the hat has label saying HB, but there are hundreds of Henry Bakers in the city, so we can't trace him. अब उसने बोला कि ये for Mrs. Henry Bakers के लिए है और इसकी हैट पर लेबलिंग भी डली हुई है, दैट इज HB, जो कि हेनरी बेकर्स को बिलोंग करती है. बट यहाँ पर सिटी में बहुत सारे हेनरी बेकर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ हेनरी बेकर्स हैं, तो हम कैसे उस हेनरी बेकर्स का पता लगाएं जो कि इस गूस को बिलोंग करती है. राइट? What are you going to do? अब तुम क्या करने वाले हो? The goose is getting spoiled and will have to be cooked today. As for the owner, we only know as much as we can deduce from the hat. कि गूस जो है वो खराब होती जा रही है, उसे आज ही पकाना पड़ेगा.
और ओनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उस हैट के ओनर का पता लगाए. एंड वॉट इज़ इट? होम्स पिक्ड इट अप एंड गेज्ड एट इट. अब उसने पूछा कि अच्छा और ये क्या है? होम्स ने कुछ चीज़ उठाई और उसकी तरफ देखा. That the man is highly intellectual is obvious. He was quite well off 3 years ago, but has now fallen upon evil days. He is man who leads a sedentary life, is middle-aged and is well, and has grizzled hair which has been recently cut. After that, you can't tell all that from a hat. You are joking, Holmes. अब होम्स ने वो सब चीज़ें देखकर बता दिया कि ये आदमी ऐसे ऐसे है, इसकी ग्रे हेयर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, मिडिल एजड है. पर उसके फ्रेंड ने उसे बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें ये सिर्फ एक हैट देखकर तो नहीं बता सकते हो, राइट? तुम मजाक कर रहे हो. नॉट एट ऑल सैड होम्स, द हैट इज़ वेरी लार्ज. जब उसने बोला कि बिल्कुल नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कि हैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. अ मैन विथ सच अ लार्ज हेड मस्ट हैव समथिंग इनसाइड इट. एक ऐसा आदमी जिसका इतना बड़ा सिर हो, कुछ ना कुछ तो उसमें अजीब है. This hat was fashionable and expensive 3 years ago, but since it is so shabby and he has bought no hat since then, he has gone down in the world. अब वो कह रहा है कि ये हैट जो है बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और एक्सपेंसिव थी आज से 3 साल पहले, पर आज भी उसने ये शैबी सी गंदी सी हैट जो है अपने पास रखी हुई है, उसने कोई और हैट नहीं खरीदी है. इसका मतलब कि वो वर्ल्ड से छुप कर रह रहा था इतने दिनों तक, राइट? There are a large number of grizzled hair ends which shows that he has just had a haircut and had marks of perspiration show that he is not in the best job training. अब उसी के बाद उसने बताया कि इसके एंड में बहुत सारे grizzled hair ends हैं जो कि ये शो करते हैं कि उसने आदमी ने अभी अभी हेयर कट लिया है, राइट? Just then the door burst open and Peterson rushed in and with flushed cheeks and a dazed expression, the goose, Mr. Holmes, the goose, sir, he gasped. अब उसी के बाद जो डोर है वो खुलता है और पीटरसन अंदर आता है विद फ्लश चीक्स और वो बोलता है एक डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ कि जो गोज है मिस्टर होम्स, द गोस्ट ही गैस्प, वो छूट गई है. व्हाट अबाउट इट सेड होम्स. अब होम्स ने पूछा कि ये क्या है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? See here, sir. See what my wife found inside it. अब उसने बताया कि गूस के अंदर क्या है, कि गूस के अंदर हमें क्या मिला. He found out his hand and showed us at brilliant blue stone, smaller than a bean but of great purity. अब उसे वहाँ पर एक ब्लू कलर का स्टोन मिला जो कि बीन से छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा प्योर था, राइट? शर्लॉक होम्स सेट अप विद अ विसल. अब शर्लॉक होम्स जो है वो एक विसल बजाते लिए उसके साथ खड़े हो गए. It is a diamond, he said. The Countess of Morcar's blue diamond. It is absolutely unique. अब शर्लॉक होम्स ने बोला कि ये एक डायमंड है और ये काउंटेस ऑफ मॉर्कर्स ब्लू डायमंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं. देयर इज़ एन एडवर्टीजमेंट अबाउट इट इन द पेपर एवरी डे, कि इसके बारे में हर रोज़ हर सुबह एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आ रहा है. द रिवॉर्ड ऑफर्ड इज़ 1000 pounds, दो इट इज़ वर्थ मैनी टाइम्स दैट अमाउंट. कि उसने बताया कि ये इसको वापस देने का जो रिवॉर्ड ऑफर है वो 1000 pound है, पर इसकी जो एक्चुअल कीमत है वो इससे कहीं ज़्यादा है. इट वॉज लॉस्ट एट होटल कॉस्मोपॉलिटन ऑन December 22nd. I remarked John Horner, a plumber, was accused of stealing it. अभी उसने बताया कि ये चोरी हुआ था होटल कॉस्मोपॉलिटन पे December 22 को, और मैंने बताया कि और मैंने उन्हें ये भी बताया कि जॉन हॉर्नर जो था एक प्लम्बर, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था इसको चुराने का. Yes, said Sherlock Holmes, he is the newspaper report. Here is the newspaper report. अब शेरलॉक होम्स ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और ये रहा न्यूज़पेपर और इसकी रिपोर्ट. The report said that James Ryder, an attendant at the hotel, had given evidence against Horner in the कोर्ट. अब रिपोर्ट ने बताया कि एक जेम्स राइडर नाम का एक आदमी था जो कि वहाँ होटल में रुका हुआ था और उन्होंने हॉर्नर के अगेंस्ट जो है वो एक एविडेंस, एक प्रूफ दिया था कि वो ब्लू स्टोन उसी ने चुराया है. He said that he had taken Horner up to the countess room to repair a pipe
He himself had been, अब उसने उसे बताया कि मैं हॉर्नर को ऊपर काउंटेस तक ले गया था ताकि मैं अपने रूम का जो 5 है उसको रिपेयर करा सकूं. He himself had been called away for a while, and when he returned, he found the almirah had been forced open, and so had the jewel case inside. अब जैसे ही जो उसने उसे अंदर बुलाया, called away for a while, when he returned, जब वो वापस जा रहा था, he found the almirah had been forced open. अब उसने देखा कि अलमीरा जो है वो बहुत फोर्सफुली किसी ने ओपन करी हुई है, एंड सो हैड द ज्वेल केस इनसाइड, और तभी उसने देखा कि जो ज्वेल है वो अंदर वहाँ पर नहीं है. राइडर रेज द अलार्म एंड हॉर्नर हैज बीन अरेस्टेड बट द ज्वेल हैड नॉट बीन फाउंड. अब राइडर जो था उसने अलार्म जो है वो बजा दिया था, हॉर्नर को अरेस्ट भी कर लिया गया था, पर जो ज्वेलरी थी वो अभी तक भी वहाँ पर उसे नहीं मिली. Catherine Cusack, the Countess' maid, gave evidence that she had come in on hearing Ryder's cry and found things as he had described them. अब एक कैथरीन कैसैक नाम की काउंटेस मेड थी जो कि वहीं पर काम करती थी, और उसने ये प्रूव किया था कि वो वहाँ पर राइडर्स का रोना सुन के आई थी, और सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि राइडर्स ने वहाँ पर डिस्क्राइब करी थी. Well, said Holmes, we must now try and find out who the criminal is. अब शेरलॉक होम्स ने बोला कि अब ठीक है, जब हमें इतनी सिचुएशन पता ही चल गई है तो चलते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्रिमिनल आखिर में है कौन. What will you do? I asked. अब मैंने उससे पूछा कि तो तुम करोगे क्या? Advertise, said Holmes. Then he wrote, found at the corner of God Street a goose and a black felt hat. Mr. Henry Baker can have the same. It applies at 221D Baker Street. अब उसने एडवर्टीजमेंट तैयार किया कि उन्हें एक खोया हुआ गूज और एक ऐसे करके वहाँ पर ब्लैक हैट मिली है, राइट. Put this advertisement in all the evening papers. Give me the stone, Peterson, said Holmes, and buy a goose on your way back, for we must have one to give to the gentleman. अब उसने बोला कि इस एडवर्टीजमेंट को शाम के सभी अखबारों में लगा देना, और ये स्टोन मुझे दे दो पीटरसन, और घर जाते वक्त एक गूस जो है वो खरीद लेना जो कि हम उस जेंटलमैन को ऑफर करेंगे, वापस रिटर्न में देंगे. होम्स हेल्ड द स्टोन अप अगेंस्ट द लाइट. इट इज अ बोनी थिंग, ही सेड. सी नाउ इट ग्लिम्स एंड स्पार्कल्स. अब होम्स ने बोला कि ये स्टोन बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और ये अब बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, राइट. It has dangerous history. There have been 2 murderers, an acid throwing, and several robberies for its sake. ये स्टोन एक बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री लेकर अपने साथ घूम रहा है. वहाँ पर 2 मर्डर्स थे, एक एसिड थ्रोइंग एंड सेवरल रॉबरीज फॉर इट्स सेक, कि बहुत सी चोरियों ने भी इसकी जगह ली है. आई रिटर्न टू होम्स हाउस इन द इवनिंग, कि मैं होम्स के घर गया शाम को. A tall man arrived as I did and I went together to Holmes' room. अब एक टॉल मैन मेरे पास आया था और मैं उसे लेकर होम्स से रूम तक गया था. Mr. Henry Baker, I believe he said, greeting his visitor, is this your hat, Mr. Baker? अब मिस्टर हेनरी बेकर ने उसे बताया कि मैं ही हूँ मिस्टर हेनरी बेकर, और होम्स ने मिस्टर हेनरी बेकर बोल के उससे हाथ मिलाया, उसको ग्रीट किया और उससे पूछा कि क्या आप ही हो मिस्टर बेकर? यस सर, सेड बेकर. अब उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ मैं ही बेकर थी. ही वॉज अ लार्ज मैन विद अ बिग हेड एंड ग्रिजल्ड ब्राउन हेयर. अब वो एक बड़ा सा आदमी था जिसका बड़ा सा हेड था और ग्रिजल्ड ब्राउन हेयर उसके थे. ही लुक्ड अ मैन ऑफ लर्निंग हु हैड कम डाउन इन वर्ल्ड. अब वो एक ऐसा आदमी देख रहा था, ही लुक्ड अ मैन ऑफ लर्निंग, जिसे उसने वर्ल्ड में देखा था. बाय द वे, सेड होम्स, वी हैड टू ईट योर बर्ड. यू एट इट, आस्क्ड बेकर, राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर इन एक्साइटमेंट. अब होम्स ने उसे बताया कि वैसे तो हम आपके बर्ड को खाना चाहते थे. तो जो बेकर था वो एक्साइटमेंट में चेयर से उठ गया और उसने उससे पूछा कि क्या आपने वो खा ली? Yes, but we have another of the same weight and it is absolutely fresh, said Holmes. But Holmes ने बोला कि हाँ वो तो हमने खा ली, but हमारे पास बिल्कुल उसी के जैसी सेम वेट की एक और बर्ड है और वो absolutely fresh है. होम्स ने उसे ये सब चीज़ें बताई.
That will do as well, said Baker with a sign of relief. अब बेकर ने बोला कि ठीक है, वो भी मुझे चलेगी और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. Here is your hat and your bird, said Holmes. अब होम्स ने बोला कि ये रही आपकी वो hat और आपकी ये bird. By the way, where did you get that goose? अब होम्स ने उससे पूछा कि वैसे आपने वो goose जो है, वो bird जो है, वो खरीदी कहाँ से थी? At the Alpha Inn near the museum, he said. उसने बोला कि मैंने वो Alpha Inn से खरीदी थी जो कि म्यूजियम के पास है. So much for Mr. Henry Baker, said Holmes. अब होम्स ने बोला कि ओके ठीक है, so much for Henry Baker. When he left, he knows nothing about the diamond. Let us go to the Alpha Inn. अब जब वो गया तो उसे पता लगा कि उसे डायमंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने तय किया कि वो अल्फा इन की तरफ अब जाएंगे. द अल्फा इन वॉज अ स्मॉल पब्लिक हाउस. कि अल्फा इन जो था वो एक छोटा सा पब्लिक हाउस था. होम्स पुश्ड अपॉन द डोर एंड ऑर्डर्ड 2 cups of tea. Your tea must be excellent if it is good as your geese, said Holmes. अब जैसे ही होम्स जो है वो वहाँ पर पहुँचा अल्फा इन में, तो उन्होंने डोर खोला और वो वहाँ पर 2 कप चाय पीने के लिए बैठ गए. और वहाँ पर बैठते ही उन्होंने उन्हें बोला कि तुम्हारी चाय उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी कि तुम्हारी वो बर्ड है. होम्स ने ऐसा बोला. माई गीज, द मैन सीम सरप्राइज्ड. अब उस आदमी ने बोला कि क्या मेरी बर्ड? और ये बोलते हुए जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया. आफ्टर दैट, we don't keep any geese. I only got 2 dozen for Christmas for a salesman called Breckenridge in the convent garden. तो उसने बोला कि हमारे पास कोई बर्ड्स नहीं है, वो तो हम सिर्फ 2 डजन आए थे क्रिसमस की पार्टी के लिए. एक सेल्समैन से खरीदी थी जो कि ब्रिकनफ्रिज ने बोला. एंड इन द कॉन्वेंट गार्डन. We finished our tea and made for convent garden. अब हमने अपनी चाय खत्म करी और हम कॉन्वेंट गार्डन के लिए निकल गए. There was a large stall there with the name Breckenridge written over it, but a horsey looking man was closing the shop with the help of a boy. अब वहाँ पर हमने अपना चाय खत्म किया और एक कॉन्वेंट गार्डन में गए. There was a large stall, वहाँ पर एक बड़ा सा स्टॉल था with the name Breckenridge written over it, जहाँ पर Breckenridge लिखा हुआ था. बट अ हॉर्सी लुकिंग मैन, जिसकी शक्ल एक हॉर्स की तरह थी, वॉज क्लोजिंग द शॉप, वो शॉप को बंद कर रहा था विद द हेल्प ऑफ अ बॉय. सोल्ड आउट ऑफ गीज, आस्क्ड होम्स. अब होम्स ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी सारी गीज बिक चुकी हैं? द शॉप ओवर देयर हैज सम, सेड ब्रिकनरिज. अब ब्रिकनरिज ने बोला कि वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर और भी हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं. बट आई वॉज रिकमेंडेड टू यू, सेड होम्स, बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द अल्फा इन. Where you get them from? Where do you get them from? अब उसने बोला कि पर मुझे तो तुम्हारा ही नाम रिकमेंड किया गया था by the landlord of the Alpha Inn. Where do you get them from? कि तुम उन्हें कहाँ से लाते हो? To my surprise, the shopkeeper lost his temper. पर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ ये चीज़ देखकर कि शॉपकीपर जो था उसने लगभग अपना टेम्पर जो था वो खो दिया था. He was very angry. What are you at? He said. I shall tell you. Well, it's great matter, said Holmes, but why are you so angry? अब उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तो वो जो शॉपकीपर था वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था. अब होम्स ने बताया, वेल ये एक बहुत बड़ा मैटर है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे ये बताओ. Wouldn't you be angry too, said the shopkeeper, if people asked you day in and day out, where was the bird from? अब वो शॉपकीपर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि मैं गुस्सा होऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि रोज़ मुझसे लोग आते हैं और पूछते हैं कि तुम वो बर्ड कहाँ से लाए थे. I am not really interested, said Holmes, but I took a bet with someone that the bird I ate was raised in the country. अब होम्स ने बोला कि मुझे तुम्हारी बर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने किसी से शर्त लगाई थी कि जो बर्ड मैंने खाई थी वो बिल्कुल एक कंट्री बर्ड की तरह थी, कि वो कंट्री में पली बड़ी थी. यू हैव लॉस्ट योर बेट, सेड द शॉपकीपर. इट वॉज टाउन ब्रीड. अब शॉपकीपर ने बोला कि नहीं तुम अपनी शर्त हार चुके हो, वो एक टाउन ब्रीड थी. He pulled out his register. See here, he said, it was bought from Mrs. Oakshott, 117 ब्रिक्सटन रोड. अब उसने अपना रजिस्टर खोला और बताया कि देखो ये मैंने मिसेस
ऑक्सफोर्ड से खरीदी थी, जो कि 117 विक्सन रोड पर रहती हैं. अंडर द एंट्री वॉज रिटन सोल्ड टू मिस्टर विंडीगेट ऑफ द अल्फा एन. और उसी में नीचे लिखा हुआ था कि ये मैंने मिस्टर विंडीगेट अल्फा एन के मालिक को बेच लिया है. Sherlock Holmes pretended to look disappointed and he walked off. अब Sherlock Holmes ने ऐसा pretend किया कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो शर्त हार चुका है, और वो वहाँ से चले गए. When we were a short distance away, we heard a hubbub. A little rat-faced fellow was arguing with Mr. Breckenridge. अब उसी के बाद हम थोड़ा ही दूर आए थे, पर हमें पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और एक लिटिल रैट फेस्ड, एक ऐसा आदमी जिसका फेस बिल्कुल एक रैट की तरह था, वो बर्किनरिज से बहुत ज़्यादा लड़ रहा था. One of these gifts she sold to you was mine, said the little man. She told me to ask you. अब वो उस आदमी से ब्रेकनरिज से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसने बताया कि उनमें से एक गीज जो है वो मेरी थी और वो उसने तुम्हें बेच दी. अब उसने मुझसे कहा है कि तुमसे जाकर पूछे. Go and ask the king of Prussia, said Mr. Breckenridge. Get away, I have no time for you. अब Breckenridge ने बोला कि जाओ और जाकर प्रूशिया के किंग से पूछो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी टाइम नहीं है. हाँ, we may not have to go, Mrs. Oxshott, said Holmes. He overtook the little man and touched him on his shoulder. अब उसी के बाद उसने बोला कि अब हमें मिसेस ऑक्सफोर्ड के पास जाना चाहिए, होम्स ने बोला, और he overtook the little man. उसने उस छोटे आदमी को अपने साथ लिया और उसके शोल्डर पर हाथ रखा. The man spun around in alarm. अब वो आदमी बहुत ज़्यादा डर गया और जैसे ही उसके शोल्डर पर हाथ रखा गया उसने पीछे मुड़कर देखा. What do you want? he asked. अब उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए. So I will be able to answer some questions about the geese sold to Breckenridge by Oxford and then sold to the Alpha F. अब मैंने उसे आंसर दिया कुछ क्वेश्चंस का कि गीज जो है वो ब्रेकनरिज को सोल्ड की गई थी बाय ऑक्सफोर्ड, और उसके बाद ब्रेकनरिज ने उसे सोल्ड किया अल्फा इन के मालिक को. ओ सर, यू आर द वेरी मैन आई वांटेड टू मीट, सेड द मैन. अब उस आदमी ने बोला कि आप ही थे जिनसे मैं मिलना चाहता था. Getting into four-wheeler, Holmes said, "This can be discussed better at home. Come with us." अब होम्स ने उसे गाड़ी में बिठाया और उससे बोला कि ये बातें हम घर पर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, चलो मेरे साथ आओ. The man get into, and though he gave a false name first, he admitted later that he was James Ryder. अब उसके बाद उसने उसे अपना झूठा नाम बताया और बाद में उसने कन्फ्रंट किया कि मैं जेम्स राइडर हूँ. Precisely, said Holmes, had attended at the hotel Cosmopolitan. अब होम्स ने बोला बहुत आराम से कि मुझे पता है कि तुम हेड अटेंडेंट हो एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन. आफ्टर वी रीच्ड हिज होम इन बेकर स्ट्रीट ही टोल्ड मिस्टर राइडर, यू वांट टू नो अबाउट वन पर्टिकुलर गूज, डोंट यू, अ वाइट बूज विद अ ब्लैक बार अक्रॉस द टेल. अब उसने उससे पूछा कि तुम जब वो बेकर स्ट्रीट तक पहुंच गए तब उसने मिस्टर राइडर को बताया कि क्या तुम उसी एक बूज को ढूंढ रहे हो जो वाइट कलर की है, उसकी जो टेल है उस पर एक ब्लैक बार है, राइट. राइडर ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. दी राइडर जो है अब उसके इमोशंस जो थे वो जाग गए. ओ सर, ही सेड, वेयर इज इट. अब उसने बहुत ज़्यादा क्यूरियसली उससे पूछा कि अच्छा आप उसे जानते हो तो वो कहाँ है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए. आफ्टर दैट इट केम हेयर, सेड होम्स. होम्स ने बोला कि वो यहाँ आई थी. एंड अ रिमार्केबल बर्ड इट वॉज. बहुत ही अच्छी थी. इट लेड एन एग आफ्टर इट वॉज डेड, द ब्राइटेस्ट बोनियस्ट ब्लू एग, हेयर इट इज. अब उसने उसे बोला कि उसने एक एग जो है वो दिया जबकि वो मर चुकी थी. इट वॉज ब्राइटेस्ट बोनियस्ट ब्लू एग, कि वो एक बहुत ही अच्छा ब्लू कलर का एग था, और हेयर इट इज उसने वो उसे दिखाया. होम्स हेल्ड इट आउट. राइडर स्टूड इट विद अ ड्रॉन फेस अनमूविंग. अब होम्स ने जैसे ही उसे वो एग निकाल कर दिखाया तो राइडर जो है वो एक डर के फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हो गया. द गेम्स अप, राइडर, सेड होम्स. होम्स ने बोला कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है. यू हैड हर्ड ऑफ द ब्लू डायमंड, हैडंट यू, ही आस्क्ड. अब उसने उससे पूछा कि तुमने ब्लू डायमंड के बारे में सुन लिया था, है ना. कैथरीन किसैक टोल्ड मी ऑफ इट, ही सेड. अब उसने बताया कि कैथरीन किसैक ने उसे उसके बारे में बताया था. सो यू एंड द मेड मेड अ प्लान.
तो होम्स ने बोला कि अच्छा, तो तुमने और उस मेड ने एक प्लान बनाया था. यू अरेंज अ स्मॉल जॉब फॉर द प्लम्बर एंड आफ्टर ही लेफ्ट यू स्टोर इट. अब तुमने एक प्लम्बर के लिए छोटी सी काम निकाला, उसे फंसाया, और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तुमने उसे चुरा लिया. डोंट टेल द पुलिस, सेड राइडर ब्रेकिंग डाउन. अब राइडर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने बोला प्लीज़ पुलिस को ये सब मत बताना. थिंक ऑफ माई फादर एंड मदर, इट विल ब्रेक देयर हाउस. कि मेरे माँ बाप के बारे में सोचो, वो उनके दिल बिल्कुल टूट जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मैंने चोरी की है. What about poor Horner in prison? said Holmes. अब होम्स ने पूछा कि उस पुअर हॉर्नर का क्या, प्लम्बर का क्या, जो तुम्हारी वजह से जेल में सजा काट रहा है. I'll leave the country, said Ryder. There will be no evidence against him and he will be released. इसने बोला कि मैं कंट्री छोड़ दूंगा और उस प्लम्बर के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं बचेगा और वो वहाँ से छोड़ दिया जाएगा. After that, said Holmes, but first tell us the rest of the story. How did you get into the goose? अब होम्स ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, पर तुम मुझे पहले बाकी की स्टोरी बताओ कि how did it get into the goose? ये goose के पेट में कैसे गया? After the plumber had been arrested, I made for my sister's house in Brixton Road, said Ryder. अब राइडर ने बताया कि जैसे ही प्लम्बर अरेस्ट हुआ, मैं अपने सिस्टर के घर गया जो कि ब्रिक्सटन रोड पर है. I could not hide the stone anywhere in the hotel. कि मैं होटल में उस स्टोन को कहीं भी नहीं छुपा सकता था. I went into the backyard where my sister kept the geese she sold in the market. अब मैं पीछे बैकयार्ड में गया जहाँ पर वो गीज रखती थी जो कि वो मार्केट में बेचती थी. She had said she would give me a goose for Christmas, so I picked the big fine bird and white one with a bare tail. तो उसने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था कि वो मुझे क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर एक बड़ी सी गूस गिफ्ट करेगी. तो मैंने वहाँ से सबसे बड़ी बर्ड उठा ली और उसकी जो टेल थी वो भी बर्ड थी. I caught it and pushed the stone down its throat. It flapped and struggled and flew up. अब मैंने उसे उठाया, उस जो स्टोन था उसके गले में पुश किया, उसको नीचे डाला और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई. वो क्लैप किया, स्ट्रगल किया और उसके बाद वो वहाँ से उड़ गई. My sister came out. What are you doing? She asked. अब मेरी बहन इतनी देर में बाहर आ गई और उसने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हैं. I want that bird for Christmas, I said. मैंने उससे बोला कि मुझे ये बर्ड अपने क्रिसमस गिफ्ट के लिए चाहिए. We caught it again and I took it to a friend who used to get rid of stolen property. They killed it, but there was no stone inside. अब उसी के बाद उसने बोला कि हमने उस बर्ड को दोबारा पकड़ा और मैंने उस बर्ड को अपने एक फ्रेंड को दे दिया जो कि भागता रहता है स्टोलन प्रॉपर्टीज के पीछे. हमने उस बर्ड को मारा पर वहाँ पर कोई भी स्टोन नहीं था. आई रश्ड बैक टू माई सिस्टर बट देयर वर नो गीज इन द बैकयार्ड. अब मैं अपनी बहन के पास वापस गया, अपनी बहन के घर, पर वहाँ पर तब तक कोई भी गीज बैकयार्ड में नहीं बची थी. आई हैव सोल्ड देम, शी सेड, एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द वाइट वन with the bad tail, she said there were two of them and even she couldn't tell them apart. अब उसने बोला कि ऐसी तो दो बर्ड्स थी जिनकी टेल बार्ड थी और मैंने उनमें से एक तुम्हें दे दी की. I went to Breckenridge to whom she had sold them but he had sold them too. अब मैं Breckenridge के पास गया जिसे मेरी बहन ने वो सारी गीज बेची थी, पर Breckenridge ने भी एंड में उसे बेच दिया था. So now I am branded thief without having touched the wealth for which I sold my character. He burst into tears. तो अब मैं उस चोरी के लिए जाना चाहता हूँ. अब मैं वो चोर बन चुका हूँ जिसने उस चोरी का लुफ्त कभी उठाया ही नहीं और मेरे कैरेक्टर पर और दाग लग गया और वो ये बात बताते बताते रोने लगा. After that there was a long silence. Then Sherlock Holmes threw open the door. अब वहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए चुप हो गया, सब साइलेंट हो गया और शर्लॉक होम्स ने तब अपना दरवाज़ा खोला. गेट आउट, ही सेड. देयर वाज अ रश एंड अ क्लैटर एंड राइडर रैन आउट. अब उसने उसे बाहर निकाल दिया, डांट कर, फटकार कर, और राइडर जो है वो वहाँ से भाग गया. आई एम नॉट वर्किंग फॉर द पुलिस, सेड होम्स. होम्स ने बोला कि मैं पुलिस के लिए काम नहीं करता हूँ. विदाउट दिस फेलोज एविडेंस देयर इज़ नो केस अगेंस्ट हॉर्नर. कि इस फेलो एविडेंस के अलावा हॉर्नर के खिलाफ कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं है. राइडर इज टू अफ्रेड टू कमिट एनी मोर क्राइम्स. रिंग द बेल वॉटसन एंड लेट्स हैव डिनर. अब राइडर जो है वो बहुत डरा हुआ था अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट करने के लिए. रिंग द बेल वॉटसन एंड लेट्स हैव डिनर. अब उसने बोला कि चलो वॉटसन,
बेल रिंग करते हैं और अपना डिनर जो है वो खाते हैं, राइट. सो दिस वॉज द स्टोरी विच वॉज रिटन बाय Sir Arthur Conan Doyle, right? So this was the story about the adventures of Sherlock Holmes. So I hope you got the story really well and you learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.